Yes, good morning everyone. Today we will start the new chapter 8, pairs of angles and parallel lines. Okay, this is the chapter from geometry. So you have to do its work in your project notebook. Okay, no one will ask me any question after that because I am informing about everything before the class, in the beginning of the class. Okay, so you listen me carefully. You have to do the work of this chapter in your project notebook, in which the left side is blank and on the right side there will be a lining page. Okay, so theory you have to write on lining page, and the blank page you will use for making figures और diagrams. Okay, फिगर के सामने ही उससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी है आपको. ठीक है, ऐसा नहीं फिगर सारे एक साथ बना दिए और उससे रिलेटेड थ्योरी आपके पीछे वाले पेज पे चल रही है. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, थ्योरी जिस हिसाब से लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिगर बनाने हैं. फाइन. Next is use scale and pencil for making diagrams. Don't make diagrams roughly with the pen. Okay? Use scale and pencil for making diagrams. They should be very neat and clean. पूरा वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल. ठीक है. Now, if you have any query, you can ask me. What does it mean? Pairs of angles and parallel lines. Parallel lines, you all know what are they? They never intersect each other. Whether we increase them up to infinite. तो अगर हम infinite तक भी बेटा increase कर देते हैं, enhance कर देते हैं या produce कर देते हैं, तो आपस में वो एक दूसरे को cut नहीं करती हैं एक भी point पर. So they are parallel lines और उनकी जो perpendicular distance होती है हर एक point पे, that will be equal. Pairs of angles means angles you know, but what is pairs of angles? Pairs means two. So there must be two angles in a pair of angle, and in this chapter we will study different types of pairs of angles and relation between them, and how a transversal cut a parallel line to make pairs of angles. Okay, so first of all we will have revision of some topics. The first topic is line segment. What is line segment? So the shortest distance between 2 points, that will be the line segment. Say, what is a point? Point is just like a dot. Just like a dot. You can see two dots I have drawn here. So it has no height, no length and no width. Okay, and it has no dimension. It is just like a dot. If I join these two dots with the scale, then this will be the line segment. This line segment is the shortest distance between these 2 points. Okay, points are always represented with the capital alphabets. Say I am writing here A and B. I am writing their names as A and B. So this line segment between, this is the distance between A and B, which is smallest distance. आप और किसी तरीके से इन दोनों की डिस्टेंस को कवर करते हैं किसी भी तरीके से एक्सेप्ट दिस लाइन, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस लाइन सेगमेंट. ओके, चाहे आप इसको इस तरीके से कर्व में कर लीजिए या ऐसे कर्व में कर लीजिए, कहीं से भी करेंगे वो डिस्टेंस दूसरी हमेशा इस लाइन सेगमेंट से ज्यादा ही होगी. सो लाइन सेगमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 points. नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स. व्हाट इज दिस? इट हैज an initial and an एंड पॉइंट. इसका एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. हेयर ए इज द बिगिनिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट. ठीक है, अगर आप ए से बी पे खींचते हैं then A will be initial point and B will be the end point. And if you draw this line segment from B to A, then B will be the initial point and A will be the end point. But generally we take it as A and B. Okay. Second thing, because ये दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ होती है, सो इट्स लेंथ इज फिक्स्ड. फिक्स होती है इसकी लेंथ, उसे चेंज नहीं कर सकते फिर हम एक बार ड्रॉ करने के बाद. वो तभी होगी जब आप अदर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, इसके अलावा और कोई सी नहीं है. तो इट हैज सॉरी इट्स लेंथ इज फिक्स्ड. इसकी लेंथ कैसी होती है? फिक्स होती है. थर्ड थिंग, इफ इट्स लेंथ इज फिक्स्ड देन वी कैन मेजर its length. Its length
कैन बी मेजर्ड, किससे मेजर करेंगे हम? स्केल से, ठीक है। इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड, इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट? यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट? व्हाट? Unless means, infinite means its length, an infinite point can be represented over this line segment. मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इस पे बना सकती हूँ, इतने छोटे that you have to use microscope to see them, ठीक है। तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ओके फाइन। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, इसका नेम किस तरीके से लिखते हैं? सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो यू हैव टू राइट ए बी। okay, this is the distance between two points a and b, so you have to write ab and you have to mark the symbol of line segment above ab like this will be the symbol। okay, now it will be a line segment ab। अब आपको इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, line segment ab। if you mark this symbol over here then you need no to write like line segment ab। अगर आप line segment लिखते हैं तो इस मार्क की इतनी जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट यू हैव टू मार्क दिस symbol। okay, this was all about line segment। after that we go for ray। what is a ray? if the line segment is produced infinitely from one side, then it will be a ray। these all points you have studied in your previous class also। so what does it mean? That if you produce the line segment from one point, means first of all I have to draw a line segment here, fine, I am drawing a line segment and I am saying its name again, AB। this is the line segment AB। what does it mean? is produced infinitely, infinitely produce करना है, यानी उसको increase करना है, बढ़ाना है infinitely। okay, from one side, so I have to enhance or produce this line segment from one side only up to infinite। okay, मैंने साइड B से इसको प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है साइड B से। A साइड का मैंने कुछ छेड़ा नहीं है इसको, आई हैव नॉट टच्ड इट इवन। B साइड से मैंने इसको प्रोड्यूस किया है, और प्रोड्यूस कैसे करना है बेटा? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मीन्स उसको वहां तक प्रोड्यूस करना है जहां इसका कोई एंड ही नहीं हो, मतलब प्रोड्यूस करते हुए जाना है। अब पेपर पे हम उसको शो तो नहीं कर सकते इनफाइनाइट को, सो टू शो दैट आई एम यूजिंग एरो हेयर, ठीक है। उस इनफाइनाइटिज्म को शो करने के लिए मैं यहाँ पे एरो यूज कर रही हूँ। एरो का मतलब है कि ये आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सो दिस विल बी अ रे विच हैज एन इनफाइनाइट length from one side। okay, so there are also some features of ray। what is this? it has, so it has an initial point but no end point। इसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब ये स्टार्ट तो होती है लेकिन इसका एंड नहीं है कहीं भी। ओके, सेकंड इज इट्स लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। लेंथ इसकी फिक्स नहीं होती है, इसका मतलब इस लेंथ को हम इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं ना, सो इट्स लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। थर्ड पॉइंट,
इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो आप जानते हैं इनफाइनाइट को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता है। इनफाइनाइट होती ही वो चीज है जो अनकाउंटेबल होती है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। सो इट्स लेंथ कांट बी मेजर्ड। Okay, again the same point will be there. There are infinite points on a line segment. There are infinite points on a ray. रे पर भी बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके, फिफ्थ थिंग, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स रिप्रेजेंटेशन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट्स नेम। सो ए बी, अगेन आई हैव टू राइट ए बी। देखिए ए बी ही क्यों लिया, ठीक है। अगर यहाँ तीसरा पॉइंट कोई सी भी आ जाता है तो आप ए सी भी ले सकते हैं, फाइन। बट सो हाउ डू यू राइट इट्स नेम, ए बी आई हैव टू राइट। देखिए ए तो फिक्स पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो एंड पॉइंट को हम लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया इसके ऊपर बी। एंड पॉइंट तो कोई है ही नहीं, सो हाउ डू वी गिव इट्स नेम। सो आई एम टेकिंग एंड पॉइंट बी ऑन दिस रे, सो आई एम राइटिंग ए बी। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ये ए और बी के बीच की लेंथ है, नहीं। ए बी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दैट इट इज लेंथ बिटवीन ए एंड बी, ये सिर्फ इसके नेम को शो कर रही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो इसकी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ को हम शो नहीं कर सकते हैं, फाइन। ये सिर्फ इसके नेम को शो कर रही है। एंड टू रिप्रेजेंट वेदर इट इज अ रे और नॉट, यू हैव टू मार्क इट सिंबल अबव इट। इसका सिंबल बनाना है आपको, जिस तरीके से लाइन सेगमेंट का सिंबल हमने यहाँ बनाया था, 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींच के, सिमिलरली you have to mark its symbol like this. On one point there will be a point and other side it will be a arrow. Okay, so this will be the representation of a ray. Next point is line. So if we produce the line segment on both sides then it will become a line. ray में क्या किया था बेटा हमने, ray में हमने line segment को only from one side produce किया था, ठीक है, but in the line we have to produce it from both the sides. ए पॉइंट से भी मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया जो इनिशियल पॉइंट था, और बी जो एंड पॉइंट था वहां से भी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सो इफ आई और इफ वी produce the line segment on both the sides infinitely then it will become a line. So there will also be some features for that. It doesn't have इनिशियल एंड एंड पॉइंट, ना तो इसका कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ना तो ये स्टार्ट होती है और ना ही कहीं खत्म होती है, एंड पॉइंट भी नहीं होता है इसका, ठीक है। सेकंड इज इट डजंट हैव फिक्स लेंथ। ऑब्वियसली अगर ये इनफाइनाइट है तो इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं होगी, एंड सो वी कांट मेजर इट्स लेंथ, और इसकी इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है, तो हम इसकी लेंथ को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। Again the next point will be the same. There are infinite points on a line. किसी भी लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होती है। ऑब्वियसली अगर लाइन सेगमेंट पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो लाइन पर तो होंगे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इनफाइनाइट ही जा रही है, ठीक है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, इसका नेम किस तरीके से लिखते हैं। नाउ अगेन आई विल से कि यहाँ भी ना तो इसका कोई इनिशियल पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है, तो हम उनका नाम तो रख नहीं सकते इनिशियल और एंड पॉइंट का। सो आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स ऑन इट ए एंड बी एंड आई विल यूज देम टू राइट इट्स नेम, ठीक है। तो ए बी, आप ए बी की जगह बेटा पी क्यू एनी इंग्लिश अल्फाबेट यू कैन टेक, फाइन। आई एम टेकिंग ए बी। ए बी अगर मैंने लिया है सो इसको लाइन का सिंबल बनाना पड़ेगा ऊपर। सो ऑन दी बोथ साइड्स यू हैव टू मार्क द एरो। ये एरो क्या शो करते हैं, इनफाइनाइटिज्म, कि ये लेंथ जो है, ये जो लाइन है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है फ्रॉम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑल्सो, ठीक है, दोनों ही साइड से इनफाइनाइट पे जा रही है, उसके लिए हमें ये एरो शो करना पड़ता है यहाँ पे। सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन। ये लाइन, ये जो सिंबल है बेटा, ये क्यों लिखते हैं यहाँ इसके ऊपर, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आप सिंपल ए बी लिखेंगे तो हमें नहीं पता वो लाइन सेगमेंट है, रे है या लाइन है, क्योंकि एक ही लाइन में लाइन सेगमेंट भी बन सकता है और रे भी बन सकता है। यहाँ पे इस लाइन में देखिए, अगर मैं इसे हाइड कर दूं
तो क्या ये एक रे नहीं है ए बी? यस इट इज अ रे। अगर मैं इसे भी हाइड कर दूं तो अब ये एक लाइन सेगमेंट बन गया ए बी, यानी कि इस एक लाइन में तीनों ही चीजें प्रेजेंट है, तो उनके नेम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये सिंबल ऊपर बनाने पड़ते हैं। फाइन। आफ्टर दैट वी विल टेक द पॉइंट एंगल। व्हाट आर एंगल्स? व्हाट इज एन एंगल? If two rays starts from the same initial point, या आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, if two rays are having the common initial point, okay, so if two rays starts from the same initial points then they make an angle, वो क्या बनाते हैं? एक एंगल। तो एंगल किस तरीके से बनता है अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगी आपको शो हो जाएगा अच्छे से। तो क्या कहा मैंने? इफ टू रेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, मैंने पहले एक रे बनाई इस तरीके से, इसका नाम मैंने रखा ओ ए, ठीक है। ओ एंड ए इज अ रे, आई नीड टू रेज, तो मैंने दूसरी रे भी बनाई, इसका नाम मैंने रखा ओ बी, ठीक है। दिस इज द रे ओ ए एंड दिस इज द रे ओ बी। अभी क्या कह रहा है? इफ टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? फ्रॉम विच पॉइंट द रेज बिगिनिंग, जहां से रे स्टार्ट हो रही है, तो दोनों कहां से स्टार्ट हो रही है? ए ओ से स्टार्ट हो रही है, बट अभी ये डिफरेंट प्लेसेस पर है, डिफरेंट प्लेसेस पर है ना। अगर ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये जो लाइन है ये शिफ्ट होकर ये इस तरीके से आ जाए यहाँ पर, किस तरीके से? लाइक दिस। अब दोनों के इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गए हैं ओ पर, ये ओ ए का ओ भी है और ये ओ बी का भी ओ है, दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। तो इस तरीके से जो ये फिगर बनता है इट इज कॉल्ड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी राइट इट्स नेम? इसका नेम किस तरीके से लिखते हैं बेटा? रेस कौन कौन सी है यहाँ पर? ओ ए एंड ओ बी, रे का सिंबल बना दिया ऊपर। द कॉमन इनिशियल पॉइंट, विच इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट? जो सेम पॉइंट जहां से दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, क्या नाम है उसका? इट इज ओ। सो जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है ओ, इसे बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ओके बेटा। इट इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। कॉमन इनिशियल पॉइंट जो है ओ, जहां से दोनों ही रेज स्टार्ट हो रही हैं, इससे बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल, ओके। ओ ए एंड ओ बी जो ये रे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल। ये आर्म्स है इस एंगल की। ये ओ ए और ओ बी जिन रेस से मिलकर के ये एंगल बन रहा है, दे आर कॉल्ड आर्म्स। जब भी हम एंगल के लिए बात करेंगे तो इन रेस को हम क्या बुलाएंगे? आर्म। सो व्हाट विल इट बी? आर्म ओ ए एंड आर्म ओ बी, ओके। नाउ हाउ टू राइट इट्स नेम? यस यू कैन से इट इज द कॉर्नर ऑफ एंगल, द कॉमन कॉर्नर ऑफ द एंगल ऑफ टू रेस, ठीक है। नाउ हाउ डू वी राइट इट्स नेम? रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखते हैं इसे? देखिए, जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा ओ, ठीक है। बाकी दोनों पॉइंट्स इसके दोनों साइड्स में आएंगे, यानी ए यहाँ तो बी यहाँ। एंड बिफोर दिस वी हैव टू राइट द मार्क और सिंबल ऑफ द एंगल, ओके। जिस तरीके से हमने रे में, लाइन सेगमेंट में और लाइन में भी सिंबल बनाया था नेम के ऊपर, यहाँ स्टार्टिंग में सिंबल बनता है एंगल से पहले, ठीक है। सो हाउ डू वी स्पीक इट? एंगल ए ओ बी, और एंगल, ये ओ तो बीच में ही रहेगा वर्टेक्स। अब ए और बी इसके साइड्स में लिखने हैं, मैंने पहले ए लिखा बाद में बी लिखा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले बी और बाद में ए। तो ए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। इसे मेजर किस तरीके से करते हैं? इसके मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट यूनिट होती है इसकी डिग्री। किसे मेजर करते हैं इसको? डिग्री में। जिस तरीके से ये लाइन
सॉरी, लाइन सेगमेंट की लेंथ हम मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में। उसी तरीके से एंगल का जो मेजरमेंट है वो होता है डिग्री। ठीक है, एक छोटा सा गोला, छोटा सा स्फीयर बनाना होता है आपको, सर्कल बनाना होता है इसके मेजरमेंट के ऊपर, लाइक 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री। ओके, सो these were 4 points you have studied in class 6 and we have revised them today. Tomorrow we will start the main or new topic of this chapter, that is pairs of angles. Okay, thank you.